join again within 5 to 10 minutes. Don't raise hand during lecture. Ask question at the end of the class. Use hand free if you are using mobile and headphone for computer. Take care of time for attending the class. Take care of time for attending the class. Take screenshot of all slide. If there is any disconnectivity ड्यूरिंग द क्लास, अगर कोई डिस्कनेक्टिविटी या कोई इशू या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप दोबारा ज्वाइन कीजिए 5 to 10 मिनट्स में. और ड्यूरिंग लेक्चर डोंट रेज हैंड. इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टी आस्क क्वेश्चन एट द चैट बॉक्स एट द एंड ऑफ द क्लास. देखिए लास्ट में अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो आप क्लास के लास्ट में पूछ सकते हैं चैट बॉक्स. हैंड फ्री, use hand free if you are using mobile and headphone for computer. हेडफोन और हैंड फ्री ड्यूरिंग क्लास आप यूज़ कीजिए. टेक केयर ऑफ टाइम. टाइम का ख्याल रखें फॉर अटेंडिंग द क्लास. और ड्यूरिंग क्लास आप स्क्रीनशॉट्स लेते रहें तमाम स्लाइड्स. लेट्स गो. Today we start our first chapter, chapter number 1, computer. So please, students, open your book. Open your books and open page number 1, chapter number 1, and chapter name is a computer. Here are some objectives. Define computer as a machine, and second one is define machine. Third one is differentiate between simple and smart machine. Fourth one is differentiate between human and computer. Now, do you know, student, what is computer? A computer is a smart machine in which we easily perform operations, data, present the result, and store data or result as needed. As you see in the picture, here is the laptop in which we easily add data, perform operations on that, present the result, and make the result and store our data easily or get back result as we need it. In the other picture, this is the mouse, this is the keyboard, this is the desktop computer, or this is the CPU. CPU stand for Central Processing Unit, in which all the data were saved in this CPU, which is called Central Processing Unit. In computer you see small icons were there, like my computer, my network places, and mouse, keyboard. In computer we perform operation like sum, like get back result, stored our data as we need it. And the other definition of the computer is it is a device for working with information. Through computer, we get information like numbers, words, pictures, movies, or sound. Computer give information is also called data. In computer, we save our data very quickly, or huge amount of data was saved in a computer within a minute. कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम अपनी तमाम इंफॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं एंड
वी गेट इन्फॉर्मेशन, हम लोग उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हम उसमें इजीली उसमें हम कोई भी पिक्चर एडिट, कोई भी पिक्चर सेव, इसमें हम मूवीज़ देख सकते हैं, कोई भी साउंड्स और कोई भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो वो हम कंप्यूटर की मदद से इजीली ले सकते हैं। इसमें हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम इसमें कोई भी डेटा इजीली सेव कर सकते हैं, लार्ज फाइल्स। इसमें हमारा म्यूज़िक, कोई भी पिक्चर्स हमें नीड है तो हम वो इसके अंदर इजीली देख सेव कर सकते हैं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इतना ज़ोर बोल और ज़ोर से बोल। कंप्यूटर एक डिवाइस है जिसमें हम इजीली इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई भी सम सॉल्व किया जा सकता है, कैलकुलेटर यूज़ किया जा सकता है, पिक्चर्स देख सकते हैं, इसमें पिक्चर एडिट हो सकती है। इजीली आप इसमें अपना फेवरेट गेम खेल सकते हैं, मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं और इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इजीली मिल सकती है। Here are the difference between desktop computer and a computer. The computer that are kept on the desk are called desktop computer. Desktop computer and desktop computer with a in first picture desktop computer with a CPU cabinet, and the second one is desktop computer with a CPU inside the monitor. As you see, there is no monitor inside the monitor, which is shown in the picture. As you see in the picture, there uh, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है इनसाइड द मॉनिटर यहाँ पे फिक्स्ड है, इसके बैक पे भी सीपीयू फिक्स्ड है। सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर के साथ अटैच है और इसमें आप ये मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस सेपरेट देख रहे हैं। बट डेस्कटॉप विद अ computer with a CPU inside the monitor which is fixed inside the computer. Parts of computer. These are the main parts of the computer: monitor, CPU. CPU stands for Central Processing Unit. Keyboard, mouse. These are the parts of the computer and also called, this monitor is also called desktop computer. Desktop computer. Now next, listen, you can't hear my voice. I'm speak loudly. Beta, what happened? The computer that are kept on a desk are called desktop computer, which is fixed inside the computer with the buttons are shown in the figure and the mouse is here. We can right click, save our document, left click, and the scroll bar is also fixed in the mouse, which is used as a third button like scroll V, called scroll V. Now next, machines. Machines are things that is made by us that they make our work easier. With the help of machine we can do work easily, and like toaster, scissor, car, aeroplane, washing machine, truck. These are the machine which make our work easier. There are some machine names like toaster, scissor, car, fridge, aeroplane, truck, washing machine. ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप मुझे कुछ मशीन के नेम्स चैट बॉक्स में बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन और आई गिव यू द आंसर। अब आप मुझे कुछ मशीन के नेम्स बताइए which we use inside the house or outside the house. जी, machine
laptop, another one. Next, next. Okay, beta, next. Motorcycle, well, good. Fan, yes. Next one is washing machine, mobile, motorcycle, bicycle. These are the machine. Very good. And next one is fan. Vessel. Very good, beta. You give me the answer in the chat box. Swing machine. Yes. Next. And outside also. Dear student, give me the answer of inside and outside machines. Fridge, car. Okay. Next. Left. ATM, telephone. Next. Yes, very good. You are participating and give me the answer. Okay. Okay, I'm explaining first one machine. A toaster is a machine found inside the house. Mostly you watch in your houses and found inside the house. It helps to make bread crisp and brown. As you watch in your home inside the house. जैसे कि आपने अपने घर में देखा टोस्टर इज अ मशीन. आपने अपने घर में देखा होगा कि बहुत सारी मशीन्स होती हैं लाइक like toaster. Another one is okay. Toaster with the found. It is found in our home. It is used to make bread crisp and brown. Scissor. Scissor is also a machine. A pair of scissors is a machine used to cut paper or cloth. It is used inside at your home. Sandwich maker is also a machine. Yes, you give me the answer. You are correct. And then and next is scissor. With the help of scissor, we cut our cloths, paper easily. When you make presentation, you cut different type of paper. With the help of scissor, we cut paper or cloth easily. Next, next, next. A car is also a machine found outside the house. It is used to travel from one place to another place. कार एज यू नो दैट वी इट इज़ फाउंड आउटसाइड. जैसे कि आप जानते हैं इसका इस्तेमाल आउटसाइड प्लेस के लिए होता है. आप इस पे एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रैवल कर सकते हैं. जैसे कि आप डेली बेसिस पे देखते हैं कि आपको कहीं जाना हो लाइक आप किसी जगह पिकनिक वगैरह जाते हैं तो उसका इस्तेमाल कार का इस्तेमाल किया जाता है. एंड इट इज़ यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. फ्रिज. And the next one is fridge. Fridge is a large metal container which is kept cool, usually by electricity, so that food that is put in it stay fresh. फ्रिज एक लार्ज मेटल कंटेनर है जिसमें आप अपने फूड को फ्रेश रख सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी यूजुअली बाय इट इज़ यूज ये इलेक्ट्रिसिटी पे आप यूज़ करते हो. एंड सो दैट फूड इसमें जो आपके फेवरेट फ्रूट वगैरह लाइक जो भी आपका फूड है वो इजीली फ्रेश रहता है. और आप इसमें अपनी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक वगैरह जैम ब्रेड एक्सेट्रा जो भी आपकी फूड है उसमें आप इजीली फ्रेश रख सकते. इट इज़ ऑल्सो अ मशीन. एरोप्लेन.
A powered flying vehicle which with fixed wings and a weight greater than that of the air it displaces. As it is a flying vehicle, it is also a machine which is made by the which is man-made machine in which we fly. इसमें हम इजीली फ्लाई कर सकते हैं. एक फ्लाइंग व्हीकल है. इट इज़ ऑल्सो मशीन इन विच वी फिक्स विंग्स, जैसे कि आपको इसमें विंग नज़र आ रहे हैं, जो जिसमें हम इजीली ट्रैवल कर सकते हैं विद इन लाइक बहुत कम वक्त में हम इजीली इस पर फ्लाई कर सकते हैं और इजीली ट्रैवल एक से दूसरे कंट्री में. ट्रक, a truck road vehicle that is used for transporting large amount of goods. It is also a vehicle इन विच वी इसमें हम तमाम बहुत सारे गुड्स, बहुत सारा साजो सामान, लाइक कोई भी सामान हम इसमें इजीली एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो अ मशीन एंड रोड व्हीकल. ये आपने मोस्टली रोड पे देखा होगा, बहुत सारे ट्रक्स एंड डिफरेंट ऑयल टैंकर्स. दीज आर द मशीन विच इज़ मेड बाय मैन मेड, जो कि इंसानों ने बनाई है. इसमें हम इजीली ट्रांसपोर्टिंग बहुत ज़्यादा तादाद में बहुत ज़्यादा सामान भेजा जा सकता है डिफरेंट कंट्रीज़ में. वॉशिंग मशीन, अ मशीन फॉर वॉशिंग क्लॉथ, बेड, लाइनन एक्सेट्रा. वॉशिंग मशीन में जैसे कि आप वॉशिंग मशीन में इजीली अपने कपड़े वगैरह वॉश, डर्टी क्लॉथ वॉश कर सकते हैं. और इससे पहले इसमें हम इजीली अपने कपड़े वॉश कर सकते हैं. जैसे कि ये इट इज़ ऑल्सो यूज इनसाइड हाउस. ये आप नॉर्मली आप अपने घर में घर के अंदर वॉशिंग मशीन वगैरह और कपड़े वगैरह धोए जाते हैं. Student, if you further know about these machines, so you have to ask me the question. अगर आपको कोई चैप्टर में कोई स्लाइड से रिलेट आपने कोई क्वेश्चन करना है तो आप इजीली क्वेश्चनिंग कर सकते हैं. चैट बॉक्स में आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं. लाइक आपको कोई मशीन से रिलेट कोई समझ में नहीं आया, लाइक अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया. नंबर 1 है टोस्टर, सीजर, कार, फ्रिज, एरोप्लेन, ट्रक एंड वॉशिंग मशीन. अगर आपको कोई चीज़, कोई स्लाइड या मेरी वॉइस इजीली समझ में नहीं है तो आप इजीली क्वेश्चनिंग कर सकते हैं चैट बॉक्स पे. नाउ आई एम स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शंस हाउ टू मेंटेन योर कॉपी. अब मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बताने लगी हूँ कि आप लोगों ने अपनी कॉपी किस तरह किस माइक्रोवेव. ओके. कवर योर कॉपी विथ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट. आपने अपनी कॉपी को जो है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट से कवर करना है. ठीक है. इसमें आप अपना नेम लिखेंगे. सब्जेक्ट नेम होगा, ये होगी आउटर फेस शीट. जब आप इनर फेस शीट पे आएंगे तो आपने उस पर अपना नेम लिखना है, क्लास लिखनी है, रोल नंबर लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट नेम लिखना है. ना ऑल्सो यू हैव टू राइट स्कूल नेम, like your name, school name is Ismailia Youth Services, and also make the title of first term 2021 to 2022, and also write the unit number. At that time I am explaining the chapter a computer, unit number 1, and write unit name. Unit name is a computer. Home task must be done in your computer for your copy. Again, कवर योर कॉपी. आपने अपनी कॉपी ट्रांसपेरेंट शीट, प्लास्टिक शीट से कवर करना है. एंड देन अपना नेम लिखना है, फिर अपनी क्लास 1 सेक्शन ए और बी. देन राइट योर रोल नंबर, देन सब्जेक्ट नेम, कंप्यूटर, एंड स्कूल नेम इज Ismailia Youth Services and Prince Ali Boys. And then make the title. In the other page, make the title. In the other page, make the title of first term 2022, 21 to 22, and then write unit number 1. Then write unit name, and unit name is a computer.
एंड होम टास्क मस्ट बी डन इन योर कंप्यूटर फेयर कॉपी। आपने अपना कंप्यूटर का काम फेयर कॉपी में करना है और इस पैटर्न से करना है कि आपने सबसे पहले ट्रांसपेरेंट शीट, उसके बाद अपने नेम वगैरह, क्लास, रोल नंबर, टाइटल बनाना है नेक्स्ट पेज पे, एंड देन राइट द यूनिट नंबर 1 एंड राइट यूनिट नेम। और आपने अपना काम फेयर कॉपी में करना है। एंड here are some question or home task. Answer the following. What are machines? As I previously explained that machines are things made by us that make our work easier. मशीन वो हैं जो कि हमारा वर्क इजीली कम टाइम में नंबर 1, what are machine? in in book page number 1, what are machine? Answer is मतलब and that answer is machines are things made by us that make our work easier. In page number आपका आंसर उस पेज नंबर पर मेंशन है, आप वो टीचर मेरे स्कूल में प्रिंसिपल बोल उसका आंसर पेज नंबर 1 पे मेंशन है। तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट आर मशीन, सो यू हैव टू राइट, आप लिखेंगे मशीन्स आर थिंग्स मेड बाय अस, जो कि पेज नंबर 1 पर मेंशन है। ओके, इंटरलीफ पेज जो है ना वो आप ऐसे ही रहने देंगे। आपने लाइन वाले पेज पे यूनिट नंबर 1 और यूनिट नेम मेंशन करना है, ठीक है। ब्लैंक पेज पे आप लोग डायग्राम वगैरह बनाएंगे तो आप उस पर जब बनाया करेंगे तब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक अ लुक इन योर हाउस एंड मेक अ लिस्ट ऑफ एनी 5 मशीन। इस क्वेश्चन में आपने ये बताना है कोई भी ऐसी 5 मशीन्स के नेम आपने लिखने हैं जो कि आपके घर में मौजूद हों। प्रीवियसली जो आपको बताया जैसे कि मशीन, आयरन, फैन, ये सारी मशीन के नेम्स जो हैं ये आपने अपनी बताने हैं होम टास्क में, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन। नाउ next home task is filling the blanks with the help of the given words. Filling the blanks with the help of the given words. You also write. ये filling the blanks आपने अपनी कॉपी में क्वेश्चन आंसर्स के बाद लिखनी है। इसका स्क्रीनशॉट, take a screenshot of these slides. You have to write in your copy. And here are the answer of these filling the blanks. You have to write in the blanks. You can dash pictures on a computer. You can draw pictures on a computer. Again, I am explaining these fill in the blanks in the slide, so you take screenshot of this slide. Okay, beta. Number 1 is you can sum. Number 1 is you can draw pictures on a computer. You can solve sums on a computer. Next fill in the blank is next is you can draw picture on a computer, you can solve sums on a computer, you can type on a computer, you can use a computer to listen music. These are the answer of this fill in the blanks. You can store a lot of information on a computer. आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स, इसके आंसर आपको स्लाइड पे मेंशन किए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स, यस बेटा आपने ये पेंसिल से लिखना है, क्वेश्चन पेंसिल से लिखना है। और इसके इस फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर आपको स्लाइड पे शो हो रहे होंगे जो कि ऊपर बॉक्स में मेंशन है। आपने ये आंसर्स इस फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है।
अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यू कैन डैश पिक्चर, यू कैन ड्रॉ पिक्चर्स ऑन अ कंप्यूटर, यू कैन सॉल्व सम्स ऑन अ कंप्यूटर. नेक्स्ट इज यू कैन डैश ऑन अ कंप्यूटर, यू कैन टाइप ऑन अ कंप्यूटर. हम कंप्यूटर में इजीली टाइप कर सकते हैं. यू कैन यूज अ कंप्यूटर टू लिसन टू म्यूजिक, हम कंप्यूटर पे इजीली म्यूजिक सुन सकते हैं. यू कैन स्टोर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर, हम कंप्यूटर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं. डेटा स्टोर हो सकता है, डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है, पिक्चर्स देखी जा सकती है, इसमें हम कोई भी डेटा टाइप कर सकते हैं, सम हो सकता है, कैलकुलेशन इजीली हो सकती है. नाउ नेक्स्ट होम टास्क. नेक्स्ट होम टास्क इज हु एम आई. ये पिक्चर आपके सामने है, ठीक है. आई एम अ मशीन यूज टू वॉश डर्टी क्लॉथ. आपने आप चैट के अंदर इसका नेम बताइए मुझे, इन दोनों मशीन्स का नेम चैट के अंदर बताइए. I am a machine used to wash dirty clothes. Write the name of in this washing machine. Okay, good. Next one. Good. Washing machine and pair of scissor. It is scissor. You, you have to write this in your copy in the same pattern, and also write the purpose why we use washing machine. आपने पहले ब्लैंक पे इसका नेम मेंशन करना है और फिर इसके नीचे इसी का पर्पस दिखना है कि फॉर एग्जांपल वी यूज वॉशिंग मशीन टू वॉश. आई एम ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग द होम टास्क. करना कैसे है, आपने पिक्चर्स को ये पेस्ट करेंगे, पिक्चर फिर कॉपी करवा के फोटोकॉपी करवा के पिक्चर्स को पेस्ट करके और फिर सामने ये वाले ब्लैंक्स लिखेंगे. ओके, आप लोगों ने पिक्चर कॉपी आपने इस पिक्चर के प्रिंट आउट्स देने हैं और ये क्वेश्चन पर मेंशन करना है और इस पर आप इसका नेम लिख देंगे वॉशिंग मशीन. और नेक्स्ट वन है सीजर. इस शीट के आपने स्लाइड शॉट स्क्रीन शॉट लेना है और उस पर आपने इजीली नेम लिखना है. नो बेटा, यू कांट ड्रॉ दिस पिक्चर इन योर कॉपी, यू कांट ड्रॉ, सो यू हैव टू टेक अ प्रिंट. आपने इसका प्रिंट लेना है और इसका नेम एज इट इज़ मेंशन करना है. ये बुक पेज नंबर ये आपके पास पेज नंबर 8 पे मेंशन है. ये क्वेश्चन आपके पेज नंबर 8 पे मेंशन है. ओपन योर बुक. ये आपकी हु एम आई एम अ मशीन यूज टू वॉश डर्टी क्लॉथ्स. ये आपकी बुक में मेंशन है पेज नंबर 6 पे. तो आप इस पिक का प्रिंट आउट लेके और इस पिक्चर को पेस्ट करके और इसका नेम आपने एज इट इज लिख देना. Now I am again explain this machine home task. Okay, home task. In your copy, you have to write your name. Now you will take the screenshot and yes बेटा, you आपने इसका प्रिंट आउट निकालना है. पहले तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आपने स्लाइड का प्रिंट आउट निकलवाना है एंड देन आप इस पे उस मशीन का नेम लिखेंगे. अगर इनके स्टिकर्स आपके पास अवेलेबल हैं तो आप वो भी पेस्ट कर सकते हैं कॉपी. ओके बेटा, again I am repeating home task. What are machine? Answer is written in the page number 1 book page number 1. That machine are thing made by us. They make our work easier. यानी कि मशीन मैन मेड है, हम इजीली इसकी मदद से बहुत सारे काम बहुत कम टाइम में इजीली कर सकते हैं. ये नेक्स्ट इज टेक अ लुक इन योर हाउस. आपने अपने घर में देखना है और उसकी एक लिस्ट बनानी है. उसमें आपने 5 मशीन के नेम लिखने हैं, जो भी आपको सुइटेबल लगे. आप कोई भी 5 मशीन के नेम लिख दीजिएगा जो आपके घर में मौजूद हो. नेक्स्ट इज filling the blanks with the help of the given words.
अब ये फिलिंग द ब्लैंक्स, इसके आंसर्स आपके पास स्क्रीनशॉट पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। आपने ये फिलिंग द ब्लैंक्स अपनी कॉपी में इसी सेम पैटर्न पे लिखनी है। ये क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स, और ये आपने बॉक्स बनाना है, उस पर आपने मेंशन करना है, और ये फिलिंग द ब्लैंक्स आपने इस पर फिल करनी है। नंबर 1 इज यू कैन draw pictures on a computer, you can solve sums on a computer, you can type on a computer, you can use a computer to listen to music. कंप्यूटर पे हम म्यूजिक इजीली सुन सकते हैं. यू कैन स्टोर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, अ लॉट ऑफ डेटा ऑन अ कंप्यूटर. एंड नेक्स्ट टास्क इज machine. Who am I? It means I am a machine used to wash dirty clothes and write the name like washing machine. I am a machine used to cut paper. It means scissor. You have to write the answer scissor. And then thank you. Hope you understand.